Okay. So what we will do is, firstly we will discuss something about the essays today, and then we will move to the comprehension part. So first question for me is, like, what is important in the essay? What is most important thing in the essay? If you have to write an essay, what things are the one which contributes a lot? कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती है जब हमने ऐसे लिखना होता है? बच्चे कह रहे हैं मुझे फॉर्मेट. ऑब्वियसली फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद सबसे पहला आता है, चलो फॉर्मेट, आई डू अंडरस्टैंड दैट. आफ्टर दैट सेमीकोलन. नहीं बच्चों, सेमीकोलन की तो बात राइटिंग में आएगी. मैं तो अभी पूछ रही हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसे लिखने को आ गया तो मेरे लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इट्स ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था? स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? फॉर एवरी एसे देयर नीड्स टू बी first an introduction paragraph. Write down the notes in your notebook also. First we need to make the introduction paragraph, then body paragraphs. Body paragraphs, how many body paragraphs? बताइए कितने body paragraphs? Yeah, 2 to 3 body paragraphs. It all depends कि हमें पूछा क्या गया है ना, what is being asked to us. After that, conclusion. ठीक है. So what is most important is the format, and in the format there are 3 things which are very much important. First one is the introduction paragraph, then the body paragraphs, and finally the conclusion paragraph. Okay, so in introduction, now it comes a word limit in each paragraph. Tell me, what should be the word limit in introduction paragraph? Okay, total it should be 250 words, I do understand, but हमें इंटरनली ये तो नहीं है ना कि हमने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इतना बड़ा लिख दिया, उसके बाद हमने बॉडी पैराग्राफ जी छोटे छोटे लिख दिए, कंक्लूजन पैराग्राफ फिर इतना बड़ा है. सो दिस इज नॉट द सिमेट्री. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट आई एम आस्किंग? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले क्या करें, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो लिखें अप्रॉक्स वो 35 to 45 वर्ड्स का हो सकता है. ठीक है. देन write down introduction paragraph needs to be of 35 to 45 words, and then it comes the yes body paragraph. Body paragraph 1 needs to be of approx 80 to 90 words each. Yes, body paragraph needs to be of 80 to 90 words each. After that, body paragraph 2 should also be of approximately of the same length, that is 80 to 90 words. And then is the conclusion paragraph. Fine. Conclusion paragraph word limit. Yes. What should be the word limit for the conclusion paragraph? It should be again 40 to 50 words. So I want कि हर कोई बच्चा अपनी चैट में पूरा लिख के भेजेगा कि कितना इंट्रोडक्शन इकट्ठा. It's not like कि like you are writing in you can say multiple messages. In one message type that introduction paragraph का क्या word limit होगा, body paragraph का क्या word limit होगी, और conclusion paragraph की क्या word limit होगी, and number of you can say paragraphs. Make a short you can say message and then just send me. इकट्ठा आई डोंट वांट अमृत अलग अलग नहीं, जैसे इंट्रोडक्शन 35 ऐसे नहीं.
एक ही पैराग्राफ बनाओ, अपनी चैट में एंटर करके आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट डाउन। इट्स देयर इज नो नीड कि हम बहुत जल्दी जल्दी दें, बट हमें एक पैटर्न तो पता हो कि कैसे है। यस, ज्योतिका इज रिटन इंट्रोडक्शन शुड बी, जो बच्चे ओके जैसे ज्योतिका ने लिखा है ऐसे लिख दो, कॉमा डाल के लिख दो, इंट्रो में इतना होना चाहिए, बॉडी में इतना होना चाहिए, कंक्लूजन में इतना होना चाहिए। यस, गरिमा हैज ऑल्सो रिटन करेक्ट। Yes, everyone has written correct. So you are able to understand what is to be written, है ना, how much is to be written और कैसे लिखना है। अब मेरी बात आती है आफ्टर एवरी पैराग्राफ हमें क्या करना है? आफ्टर एवरी पैराग्राफ वी हैव टू टाइप व्हाट कुड बी द आंसर? आफ्टर एवरी पैराग्राफ मुझे क्या करना है? यस, after every paragraph we have to leave one line. It's not changing of the line. Yes, बच्चे, एक बच्चे ने मुझे लिख के भेजा है one line space. Obviously we have to leave one line to differentiate कि this is introduction paragraph या एक पैराग्राफ ये है, वो क्लियरली विजिबल होगा कि नेक्स्ट पैराग्राफ ये है, फिर ये है, फिर ये, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन मतलब आपने लाइन लीव की हुई है तो वो सिंबॉलिक है कि हाँ जी दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। ओके, नाउ कम्स कि हमारा जो ऐसे है, जब हमने पैराग्राफ स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, मिडल से स्टार्ट करना है, या बिल्कुल एंडिंग से स्टार्ट करना है? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। It should be left intended, it should be right intended, or it should be in the middle. Some people are writing from the middle. Left intended, कोई right intended लिखी जा रहा है. So you are not clear कि हमें पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है. Are you able to see what I am showing on the screen? What is it written? It's a written essay structure. लिखा हुआ है. लिखा हुआ है ना राइटिंग essay structure. तो इसमें पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट है? See, from where the paragraph is starting? Yes, from the left. So we will say that every paragraph is to be started from the left side. Clear? अब तो भूलेगा नहीं. Because it is being even shown you, है ना? कोई चीज हमने आंखों से देखी होती है तो हमें भूलती नहीं है. सुना हो तो फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं हमें याद नहीं रहा. Now it is very much clear. Students are writing. Sumanpreet is also writing. It's clear. See, after every paragraph we are leaving the line also. ये देखो ये blank area है ना? ये नहीं है. है. सो व्हाट इज इट? इट इज प्रेजेंटिंग कि हर पैराग्राफ क्या है, अलग अलग है, और यहाँ पे 4 पैराग्राफ्स बने हैं. यस, सो दैट आल्सो मेक्स अस अंडरस्टैंड कि हर पैराग्राफ के बाद हमें कैसे लाइन लीव करनी है. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि हमने ब्लाइंडली कभी भी लिख के नहीं आना. और जब आपको ऐसे कोई भी आएगा तो क्या करना है? जैसे ही ऐसे आएगा फटाफट लिखना शुरू कर देना है. इज इट? नहीं. फर्स्ट हमें क्या करना है, उसको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है. क्लियरली वी नीड टू रीड द टॉपिक. उसको समझना है. अगर नहीं समझ आएगा टॉपिक, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ोगे टॉपिक कि वो टॉपिक क्या कह रहा है. अपने दिमाग को समझाओगे कि व्हाट द टॉपिक इज आस्किंग मी अबाउट. यस, आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट द की पॉइंट्स. मेन पॉइंट्स लिखने हैं.
जैसे मैं कह देती हूँ एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन, या डू यू, चलो आज का हम टॉपिक ही ले लेते हैं, डू यू थिंक, do you agree with the statement that television is important source of knowledge? Today the topic we are having is, do you agree that television is an important source of knowledge? If you are agreeing with it, then what can be the points of that? Obviously आपको पता चल गया कि yes, I agree that television is an important source of knowledge, but now why it is an important source of knowledge? आप इसको मान रहे हो तो you need to jot down the points on your, you can say, rough area, कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, मेरे क्या एडवांटेजेस हैं, या कैसे हम कह सकते हैं कि टेलीविजन जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट राइटिंग. क्या पॉइंट्स हो सकते हैं बताइए. व्हाई टेलीविजन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, इट इज सो, एक बच्चे ने मुझे लिख के भेजा है, फॉर यूपीएससी स्टूडेंट चैनल्स लाइक लोकसभा राज्यसभा इज इम्पोर्टेंट. सो व्हाट इज इट, इसको पैराफ्रेज करो. ये तो आपने एग्जाम्पल दे दी. सो हम क्या कहेंगे, इट प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई it is an important, it is, you can say, a good source of information, because it provides information on every aspect. अब वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं. टेलीविजन हमने कहा yes, it is an important source of information because there are channels on the TV for every subject. ठीक है. So what are the subjects? For current affairs there are news channels. After that, for entertainment there are music channels and as well as movie channels. If some person is having interest in cookery, then there are some cooking channels also and cooking shows also on different, you can say, TV channels. What else? ये तो आगे ना, हमने कह दिया, हम कहते हैं टेलीविजन जो है इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज it covers all the aspects through the different channels, such as, उसमें आपने बता दिया, जैसे एक बच्चे ने एग्जांपल दिया है, for UPSC students there are channels like लोक सभा राज्य सभा. ओके, ये हो गया एक पॉइंट. और हम ये भी कहेंगे कि इट इज कवरिंग एवरी एज ग्रुप. यस, ये भी बात सही है, करंट अफेयर्स में यही आ रही है चक्रवर्ती. ओके, और हम क्या कहेंगे कि एक तो हमने बोल दिया इट्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है. दूसरी चीज मैं क्या कहूंगी, वो हर एज ग्रुप को भी कवर करता है. इट इज कवरिंग every age group also. What else? It is covering every age group. Then you can say for children's there are
यू कैन से चाइल्ड शोज, है ना, बच्चे उसमें परफॉर्म करते हैं, एंटरटेनिंग शोज होते हैं, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं. फॉर you can say youngsters, there are many, you can say, channels which provides the information or interest or the hobbies which the youngsters are having, such as there are sports channels also which which are liked by the youngsters a lot. Then if it comes to the fashion shows or the fashion channels, these are such things that which are majorly the passion of girls. After that, when it comes to the old age group, for them what is there? ओल्ड एज ग्रुप के लिए क्या है? You can say at that age people become very much religious and spiritual. Yeah, obviously spiritual channels are there because that is the one which is you can say very much prominent in that age. No doubt her age में we just prefer, है ना, to you can say worship God. Yes, some people are interested in yoga, so there are yoga channels also. So that is why you can say first is it provides information around the world for every age group. फिर it's a source of entertainment. Fine. Then obviously is people are writing that वो study based channels भी हैं for the youngsters. Yes, we are having on the TV. That is why it is considered as an important source of information. But हम अब इसको कहते हैं कि but on the other hand some people consider. Can we explain distant? Sukhveer, please type your message again. Sukhveer Kaur, please type your you can say point again. I'm not able to understand. Okay, if we consider the disadvantages, what are the disadvantages? Because some people are there who are not interested in that. They feel like people waste their time over there. They are the one who doesn't bother about their schedule. They just linger down on the TV and ignoring somewhere you can say their important works. Like people who go to the offices skip their office because of some important shows. Children distract from the studies. Moreover, health problems also arises, such as people start suffering from you can say eyesight problem. उनकी eyesight जो है वो कम हो जाती है. बिल्कुल. They just sit at one place and are just watching TV. तो उसके साथ क्या होता है? No physical activities. It is giving rise to sedentary lifestyle. So obesity is one of the thing. Yes, obesity आनी शुरू हो जाती है. What else? Body age. उनका creativity, natural जो creativity है वो खत्म हो जाती है. Yes, even this whatever they start watching, they start implementing that in their practical life too. And they just forgot the difference between the fiction and the real life. So that is why also, yes, one of my student is writing, yes, it gives rise to the crime also because crime shows are being telecasted on the TV. So people start thinking in that way, and thinking is when you start thinking, you start inventing. और जैसे ही वो चीजें हम सोचते हैं वैसे ही उस सोसाइटी में क्या होता है, कुछ लोग वो चीजों को पिक कर लेते हैं और वो लाइन को चला लेना शुरू कर देते हैं. So these are some of the negatives. So that's why people consider it as they doesn't consider it as an important source of information. They consider that this is the one which harms a child or harm a person. So conclusion में क्या आएगा? Conclusion में आएगा, yes, there are certain advantages and disadvantages of watching television,
but the only thing is that it depends upon a person how he is utilizing his time. If he is utilizing his time in a planned way to watch the TV, then it's not a bad thing. It's really a very good thing. But if he is not using, you can say if he is using his working hours or the study hours in that and wasting his time, then it is obviously a bad thing. So TV is not a bad. Watching TV is not, you can say, is not the thing which can be called as a crime, or not the thing which can be adjusted with. But it all depends upon the person to person how he is watching, how much time he is putting on into it. That matters a lot. ठीक है, ये तो हो गई हमारा मतलब जो हमने डिस्कशन की. आपने भी क्या करना है एग्जाम में, whenever you will get any topic in the exam, whenever you get any topic in the exam, first क्या करो, उसके points लिखो. ठीक है, जैसे मेरे पास वॉचिंग टीवी के लिए थे तो मैंने पॉइंट्स लिख लिए. अब मेरे पास क्या है, कंटेंट है. नाउ इट इज वेरी इजी फॉर मी टू प्रेजेंट दैट कंटेंट, बिकॉज अब मुझे सोचना नहीं है, बस मुझे देख के उस लाइन को फ्रेम करना है. अब मैं क्या करूंगी, मैं सेंटेंस पे, स्ट्रक्चर पे ध्यान दूंगी जो हम कल पढ़ रहे थे. बट येस, वी आर हैविंग वन फॉर्मेट ऑल्सो फॉर एग्री डिसएग्री. अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक आता है कि डू यू एग्री और डिसएग्री, अगर मैं ये टॉपिक लेती हूँ, टेलीविजन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डू यू एग्री और डिसएग्री, एंड यू पीपल सेड yes, we agree with the given situation. So how we can write it, like as it is written on the screen. One of the most conspicuous trends of the today's world is colossal upsurge in the dash. अब आपने सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, मतलब यू हैव टू क्रैम इट. क्रैम समझ आता है, व्हाट इज क्रैम? क्रैमिंग करना क्या होता है? रटना. यस, लर्न करना. ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न इट इन द सेम वे. सो यहाँ पे मेरे पास आया है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्वस. आप बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्पिक्वस. सो आई हैव रिटन द मीनिंग. Conspicuous means clearly visible, standing out, apparent. The thing which is very much clear is conspicuous. So we, yeah, just give me a minute. Let me explain and will let you know the answer of your question also. So मेरे according क्या है, one of the most conspicuous trends of the today's world is colossal upsurge. अब बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, what is the meaning of colossal? Colossal means huge, too much जिसको कहते हैं, it's huge. अपसर्ज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना. इट इज बीइंग रिटन इंक्रीज. सो दीज आर सम ऑफ द वोकेबुलरी वर्ड्स. अगर हम यूज करते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल. क्यों? क्योंकि हमारी वोकेबुलरी अच्छी लगेगी उससे, तो हमारा स्कोर भी आएगा. तो हमने कहा कि आज का जो हमने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑफ द पॉपुलर ट्रेंड जो है of the today's word is the colossal, मतलब clear increase in क्या, या तो हम लिखेंगे number of people, क्या number of people या academics believing that. बट यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे one of the most conspicuous trends of the today's word is colossal upsurge in the number of people. अब मुझे क्या लिखना है, डूइंग या नाउन या फ्रेज, है ना. नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग टेलीविजन, तो मेरी फर्स्ट लाइन बन गई. हमें सोचना भी नहीं पड़ा, बिकॉज इट इज प्री प्लान, हमने ऐसे ही लिखनी है. ठीक है. फिर आता है, देयर इज वाइड स्प्रेड वरी दैट दिस विल ओनली लीड टू myriad ऑफ कंसर्न्स इन वंस लाइफ. कहते हैं कि ये एक चिंता का कारण है कि इसके साथ क्या होगा, लोगों की लाइफ में बहुत सारे कंसर्न्स आएंगे. ठीक है. अब मैंने नहीं लिखा वो कंसर्न्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, बिकॉज आई एम राइटिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड एसे.
I'm writing a format, that's why it is not, you can say, possible over here to explain in this way. However, I do entirely accept this. कहते बट मैं इस चीज को मानती हूँ, मतलब मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई इन दिस ऐसे। क्यों मैं इस चीज को मानती हूँ, उसके पीछे मैं रीजंस बताऊंगी कि लोगों की लाइफ में इसके लिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं। तो अगर मैं एग्री कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं टीवी, मेरे को क्वेश्चन क्या था आज में, टेलीविजन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन। तो उसमें मैंने क्या बोला कि हाँ टेलीविजन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और इसमें लोगों में चिंता का कारण है, बट वो क्या है, मतलब कंसर्न्स है। कंसर्न्स क्या है, वो पॉजिटिव कंसर्न्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं एग्री कर रही हूँ तो मैं पॉजिटिव कंसर्न्स दूंगी, और मैं इनको एक्सेप्ट भी करती हूँ, एंड मैं एक्सप्लेन भी करूंगी इनको अपकमिंग पैराग्राफ्स में। देयर आर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ माय स्टैंड। अब आप लोग एग्री कर रहे हो तो आपने क्या वोकेबलरी यूज कर सकते हो, आपने ये मेंशन कर दिया यहाँ पे, देयर आर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ माई स्टैंड। ठीक है, क्या अब नंबर, जैसे हम कहते हैं देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स, यस देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ वाचिंग टेलीविजन, बट उसको बहुत ज्यादा यू कैन से इन अ सोफिस्टिकेटेड वे हमने लिखना है, तो मैंने लिख दिया देयर आर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स in the favor of my stance. The most preponderant one is, the most preponderant one का क्या मतलब है, the most important one is that। अब मुझे टॉपिक की जगह में क्या लिखना है, watching television can not only contribute to increase in knowledge, मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने यही डिस्कस किया था ना कि वो सिर्फ नॉलेज इंक्रीज करने के लिए काम नहीं आएगा, बट also leads to numerous other benefits in the various fields, और उसके साथ साथ बहुत सारे और बेनिफिट्स भी आएंगे। ठीक है, क्लियर है? इफ इट इज क्लियर से यस, कि मुझे इंट्रोडक्शन भी इसके साथ लिखनी आ गई है, मैं इसको क्रैम कर लूं तो मैं बड़े आराम से अपनी इंट्रोडक्शन लिख सकती हूँ। उसके बाद मुझे बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना भी आ गया, और मुझे पता है कि सारी वोकेबलरी मेरे पास ही है। अच्छा, अब जो बच्चा मुझे पूछ रहा है एसएस थी, यहाँ पे हमने पॉइंट देना है, कैन नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू, मतलब कॉन्ट्रीब्यूट टू मेरे को पॉइंट देना है, कैन नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू यू कैन से इंक्रीज इन नॉलेज, बट ऑल्सो नीड्स टू न्यूमरस अदर बेनिफिट्स in the various fields. Thanks to the wide range of advantages it offers, not only one can benefit more when it comes to being effective. कहते बहुत हम ना इसको मतलब हम कह रहे हैं कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके, हम उन सबका थैंक्स कर रहे हैं। नॉट ओनली इससे लोगों को मतलब बेनिफिट मिल रहा है, बट लोग जो है वो इफेक्टिव भी बन रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग इफेक्टिव, बट दे ऑल्सो कैन enhance the productivity and quality of their lives। अब वो क्या है, मतलब एंटरटेनमेंट अगर उनका होगा तो दे विल फील हैप्पी, अगर वो हैप्पी फील करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, काम करने की क्षमता, दैट इज यू कैन से प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बट दे कैन ऑल्सो इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। मतलब अगर देखो, अगर हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो लाइफ विल बी वेरी मच बोरिंग। बट इसके साथ क्या है, इसके साथ जो है इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि इससे जो है सब कुछ बहुत इफेक्टिव होगा, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी, क्वालिटी होती है हम कैसे जी रहे हैं लाइफ को, वो बढ़ेगी, और बहुत आसान,
विद मच ईज, एफिकेसी एंड कन्वीनियंस। इसका मतलब क्या है? बहुत इजीली, एफिकेसी एंड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब आराम से, और एफिकेसी का मतलब इट इज बीइंग रिटन ओवर हेयर, जस्ट सी दैट व्हाट इज इट रिटन। एफिकेसी मींस इफेक्टिवनेस ही है। इफेक्टिवनेस का मतलब कि किस हद तक बहुत अच्छा। जैसे आप अगर 10 में से 9 लेते हो तो इट इज इफेक्टिव, बट अगर वो 10 में से 4 है देन इट इज नॉट इफेक्टिव, मतलब उसका कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एफिकेसी ये होता है कि उसका आउटपुट कितना है। वो यही कह रहे हैं कि अगर बंदा एंटरटेन्ड रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी, उसको हर चीज अच्छी लगेगी, एफिशिएंट लगेगी, कन्वीनियंट लगेगी। तो हमने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए उनके। ये सारे टेलीविजन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बताओ? ये हर चीज के साथ करेंगे, बिकॉज आई हैव रिटन इन अ जनरलाइज्ड वे। वी विल डू डिफरेंट एग्जाम्पल्स, बट क्या आपको इस एग्जाम्पल के साथ लग रहा है कि यस इट इज गोइंग वेरी गुड? ओके, सो आर यू सेटिस्फाइड विद इट कि हम इस तरह लिख सकते हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस तरह लिख सकते हैं या नहीं? अगर किसी को डाउट लगता है तो प्लीज पुट योर क्वेरी इन द, यू कैन से, चैट बॉक्स। इफ योर पीपल आर फाइंडिंग कि ये सही है तो से यस, इफ यू पीपल आर फीलिंग कि नहीं दिस इज not correct, you can put a query why it is you, why you are feeling, and then I will give you the solution of that कि क्यों। हम्म। बच्चे जोबन, अगर कुछ वर्ड्स टफ हैं तो उनकी जो है आपको वोकेबलरी साथ में दी हुई है, आपको पढ़नी है ना, उसको लर्न करनी है। लर्न करोगे इसको, पहले तो क्या करोगे, इसको रीड करोगे, समझोगे, फिर अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन करोगे, फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनकी, जैसे ये वोकेबलरी मैंने मेंशन करी है, तो व्हाई इट इज बीइंग मेंशन्ड? इट इज ओनली बीइंग मेंशन्ड कि आप लोग क्या करो, आपको क्या करना है, इस वोकेबलरी को क्रैम करना है। हाँ जी बच्चे, वो हर टॉपिक के लिए हो सकती हैं, बट अगर वो एग्री डिसएग्री का टॉपिक हो तो हर चीज को प्लान करके बताया गया है। ये नहीं है कि आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो आपको पता ही ना चले उसका मीनिंग, दैट इज बीइंग डिफाइंड ओवर है। ठीक है, प्लीज एक बार इनको पढ़ना। अगर आप लोगों को डिफिकल्टी आए या आप लोगों को समझ ना आए तो मुझे मैसेज कर देना, वी विल डिस्कस इट अगेन। यू नीड नॉट टू वरी फॉर द थिंग्स। बस आप पढ़ो, कंट्रीब्यूट करो इसके ऊपर टाइम, बट स्टिल अगर आपको लगेगा कि हाँ मुझे नहीं समझ आया अभी भी, तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना कि मैम दिस इज द क्वेरी इन अ ग्रुप, तो आई विल लेट यू मेक अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर। है ना? ऐसे तो पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? कभी भी कोई चीज नहीं जब आती है। ओके, पीपल आर सेइंग दैट दे आर नॉट हैविंग माय कांटेक्ट नंबर। प्लीज नोट डाउन माय कांटेक्ट नंबर, इट्स 9653104358। I have given you my number, it's 9653104358। रच्चा। हाँ जी बेटा।
ये तो आपने ही देखना है ना, कोई टॉपिक आपको आया है तो उसके लिए क्या पॉइंट्स है। Yeah, this is something bad. I also started thinking, Garima, that I did my given you my number, but it will be there on the screen. Yeah. Mm-hmm. Okay. So let's move to the second paragraph. Another pivotal aspect of the aforementioned proposition is that it is only likely to help one thrive and excel in the varied areas. हमने कहा है एन अदर पाइवोटल एस्पेक्ट, पाइवोटल मींस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अफोर मेंशन प्रोपोजिशन, मतलब जो ऊपर मैंने मेंशन करा है भी, टेलीविजन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो वाला जो प्रोपोजिशन है, मतलब वो जो कोट है, इज दैट इट इज ओनली लाइकली टू हेल्प वन थ्राइव एंड एक्सेल, मतलब किसी को वो हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, मतलब क्या करने के लिए, एक्सेल मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। एक्सेल मीन समथिंग इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस इज एक्सेल, ठीक है। और थ्राइव इज समथिंग दैट यू फ्लरिश, है ना, मतलब आप स्ट्रगल करते हो कुछ चीजें को सीखने के लिए, दैट इज थ्राइव। व्हेन यू स्ट्रगल फॉर समथिंग टू डू, दैट मीन्स कि आप उसके लिए, जैसे आज आप लोग क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज के लिए कि यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, यू आर इंक्रीजिंग योर वोकेबलरी, यू आर इंक्रीजिंग योर लेवल, सो दैट यू कैन बी एबल द, यू कैन बी द वन हु इज एबल टू क्लियर द एग्जाम, है ना। तो कहते हैं ऐसे ही है कि अगर इसके बहुत सारे मतलब पॉजिटिव हैं, इसका एक पॉजिटिव ये भी है कि ये लोगों को हेल्प करेगा कुछ नया करने में, कुछ बढ़िया करने में। क्यों? क्योंकि अगर लोग जज करते हैं कि ये देखो भी ये बच्चा इतनी एज में बहुत अच्छा डांस कर सकता है, तो वो क्या करता है, या तो बच्चा खुद उसको देख रहा है तो वो उसमें एक आती है कि वाई नॉट आई। अगर पेरेंट्स देखते हैं तो पेरेंट्स उस एस्पेक्ट से सोचना शुरू कर देते हैं, वाई नॉट आवर चाइल्ड, तो वो क्या करते हैं, बच्चे को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं उसी के अकॉर्डिंग, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, ओनली व्हेन वन फॉलो सच अ सिस्टम, मतलब अगर कोई ऐसा सिस्टम फॉलो करता है तो, ठीक है, कैन दे ब्रॉडन देयर हॉरिजन्स, मतलब हॉरिजन क्या होता है कि वो अपना दायरा जो है उसको बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को कह रहे हैं कि वो उसके एडवांटेजेस हैं या वो बहुत अच्छी चीज है, तो ऑब्वियसली दिस इज द परफेक्ट लाइन कि वो बंदे के लेवल को बढ़ाता है, थिंकिंग लेवल को, हॉरिजन को, ठीक है। Thus, learning such essential attributes as responsibility, dedication and perseverance, मतलब उसको दायरा इतना बढ़ा देता है कि वो बंदा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो जाता है, डेडिकेटेड मतलब 100% अपने दिल से करना, लाइक यू पीपल आर स्टडिंग राइट नाउ, तो यू पीपल आर डूइंग ऑल्सो द सेम थिंग। एंड प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस मतलब जो सीखा है उसको प्रिजर्व करके रखना एंड उसको यूज करना, ये नहीं है कि उसका कोई वे, मतलब कुछ पता ही नहीं है क्या रखा है क्या नहीं है, क्या समझ आया क्या नहीं, आज किया कल भूल गया, वो वाला सिस्टम नहीं होता। क्योंकि वो वहां पे लोगों को देखते हैं कि बस वो लोग अगर मतलब ऐसे हैं या सेलिब्रिटीज हैं, वाई दे आर, बिकॉज वो अगर कोई कहो ना कि लाइक somebody is one who is you can say figure you can say फिजिकली फिट, तो वो कैसे फिजिकली फिट है, उसने बहुत सारी डेडिकेशन उस पर लगाई है, ठीक है, उसने बहुत सारा वर्कआउट करा है, उसने बहुत प्लान्ड डाइट ली है, ठीक है, एंड ही इज एबल टू मेंटेन दैट, ठीक है। तो वो चीजें हमें वहीं से सीखने को मिलती हैं। Hence it is apparent why many are in the favor of watching television. हाँ जी बच्चे, ये लाइंस ऐसे ही यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं।
इसमें सब कुछ अपने आपके लिए ही है, बट एग्री डिसएग्री का कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो ये अगर आप उसमें एग्री कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ये पर्टिकुलरली चला जाएगा उसके साथ। Okay. So, in the view of arguments outlined above, one can conclude that the benefits of watching television are indeed too great to ignore. तो हमने क्या कहा? इन द व्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आउटलाइंड अबव, जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो भी उसके बिहाफ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं ऊपर, वो सब ये चीजों को कंक्लूड करते हैं कि लाइक वॉचिंग टेलीविजन इज इंडीड टू ग्रेट, मतलब बहुत अच्छी चीज है और उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। आप क्या करो, एक बार इसको रीड कर लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है जस्ट आस्क मी वाया चैट, जस्ट आस्क मी योर डाउट्स, आई एम वेटिंग फॉर दैट। देखो बच्चों, पढ़ो, जो कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछो की आ, सो दैट ਤੁਹਾਡੇ कॉन्सेप्ट क्लीयर होना। और जो तुम रीड कर लोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा समझ ਆਊਗੀ कि की सीगा मैम ने कराया। ठीक है, colossal मीन्स ह्यूज, बहुत ज्यादा जिसका इम्पैक्ट है। उसमें डूइंग तुम्हें पॉइंट लिखना है आपने, that one can contribute to. The most important is that watching television can not only contribute to increase in information या increase in knowledge, बस यहाँ पे एक पॉइंट देना है। मैरिड मीन्स बहुत ज्यादा, इनॉर्मस, ह्यूज अमाउंट। इफ वी एग्री एज वेल एज डिसएग्री, मैं अभी सिर्फ आपको ये करा रही हूँ एग्री वाला, ठीक है, फिर मैं कराऊंगी अगर हम एग्री करते हैं बट कुछ लोग डिसएग्री करते हैं तो क्या टेम्पलेट होगा। डूइंग फिफ्थ मीन्स कुछ नहीं है बच्चे, उसमें आपने पॉइंट ही देना है। डूइंग है वो, डूइंग। प्रिपॉन्डरेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज्योतिका, प्रिपॉन्डरेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
एक बच्चा लिख रहा है प्लीज वोकेबलरी चेक, उसको सेंटेंस सही करके लिखो वीना रानी, व्हाट शुड बी द सेंटेंस? You need to write the right sentence. Yes, we can use the idioms also in the writing. If you have an exact idiom at the situation, you can use. Then there is no issue in that. प्लीज वोकेबलरी चेक नहीं लिखना, हमने लिखना है प्लीज चेक द वोकेबलरी गिवन बिलो. How we have to write this sentence? We have to write it, please check the vocabulary given below. Yeah, very nice. So do you want to go with another template जिसमें आप क्या कर सको कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों एक्सप्लेन कर सको? Should I take that also? Okay, thank you. Let's move to another one. ये एक ऐसा टेम्पलेट होगा जिसमें आप एग्री और डिसएग्री दोनों के पॉइंट्स दे सकते हो, मींस बोथ साइडेड. आप एग्री कर रहे हो, आपने अपने पॉइंट्स फर्स्ट पैराग्राफ में दे देने हैं, दूसरा बंदा जो है वो डिसएग्री कर रहा है, हम उसके पॉइंट्स सेकंड पैराग्राफ में देंगे. अगेन द टेम्पलेट इज सेम, वन ऑफ द मोस्ट, इंट्रोडक्शन वाला बिल्कुल सेम है. Sorry. One of the most conspicuous trends of the today's world is colossal upsurge in the dash. There is a widespread worry that this will lead to myriad of concerns in one's life. However, I do entirely accept this and I will explain why in this essay. बेटा that can be written. हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि किसी ने स्पेशली क्या बोला है. हम क्या करेंगे, हम जैसे जैसे टॉपिक्स उठाएंगे ऐसे के, उसके साथ साथ हम लाइंस लिखनी शुरू करेंगे, इडियम्स. ठीक है, वी विल डिस्कस इन द क्लासेस गरिमा, सो डोंट वरी फॉर दैट. ठीक है, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट वी आर गोइंग टू रिमेम्बर सो मेनी टॉप कोट्स, बट वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, लाइक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो हमें क्या होता है कि हमें वो चीजें लर्न हो जाती हैं, दैट बिकम्स आवर हैबिट. लाइक अब हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो क्योंकि हमने कहीं सुना था तो अब हम उसको यूज कर सकते हैं. तो हम ऐसे ही करेंगे ना, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम टॉपिक चूज करेंगे और उसके साथ वाले मतलब जो इडियम्स यूज हो सकते हैं वो हम यूज करना शुरू करेंगे. धीरे धीरे क्या होगा, एक तो वो हमारी यू कैन से नॉलेज को इंक्रीज करेंगे एंड मोर ओवर हमारे पास लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल आ जाएगा. अगर हमने कभी लर्न ही ना किया होता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिट, तो क्या आज हम वो वर्ड आराम से यूज करते हैं? फेमस वर्ड हम यूज करते हैं, आज हम बड़े आराम से कह देते हैं इट्स फेमस, वी आर हैबिचुअल टू दिस, दीज आर गुड हैबिट्स, दीज आर बैड हैबिट्स. ये गुड बैड हैबिट्स, दीज ऑल आर वोकैबुलरी वर्ड्स, है ना. हम कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत पवे ते आप उस चीज को इन्वेंट करते हैं. सो वी हैव स्टडीड समवेयर. ये नहीं मैं कह रही हूँ कि हाँ हम बहुत सारे क्रैम करेंगे, बट यस, जब भी हम कोई टॉपिक उठाएंगे उस टॉपिक के साथ जो मतलब पॉइंट्स हैं वो जरूर हम देखेंगे और उसमें बेस्ट क्या हम ऐड कर सकते हैं वो भी हम जरूर देखेंगे. बिकॉज व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग दैट, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज अवर नॉलेज, it will increase our vocabulary, it will increase our, you can say, writing capabilities, and that capabilities will be reflected on the exam when you will write that. Clear? Yes, I'm waiting for your words. Is it clear? Okay. हम अब ये कर रहे थे कि देयर आर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ माई स्टैंड, जैसे हमने पिछले वाले पैराग्राफ में किया.
द मोस्ट प्रिपॉन्डरेंट वन इज दैट, है ना, द मोस्ट प्रिपॉन्डरेंट वन इज दैट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नॉलेज विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू, क्या, विच कैन कंट्रीब्यूट टू, अगर वो हेल्प करती है हमें इंक्रीज करने के लिए नॉलेज, विल हेल्प टू कंट्रीब्यूट टू मूव इन द सोसाइटी। हम सोसाइटी में क्या है, जितनी नॉलेज है उतना ही बंदा, मतलब उसी हिसाब से उसका लेवल होता है और उसी हिसाब से उसका डिजिग्नेशन रहता है। ठीक है, पीपल, लोग उसको ऐसे ही मतलब उसी आय से देखते हैं ना, उसी आंख से देखते हैं। ठीक है, कैन कंट्रीब्यूट टू बट ऑल्सो लीड्स टू न्यूमरस अदर बेनिफिट्स इन द वेरियस फील्ड्स। फिर हमने वो सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर दिया। थैंक्स टू वाइड रेंज of advantages it offers, not only one can benefit more when it comes to being effective, है ना, but they also enhance the productivity and the quality, जैसे हम पीछे कर रहे थे, efficacy, convenience. Needless to say, all these merits stand one in a good state as far as argumenting their chances of prosperity and excellence is concerned. तो हम ये सब कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने सेकंड पैराग्राफ में चेंजेस आएंगे, बिकॉज ये तो हम पॉजिटिव वाला था तो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स दे दिए। देयर आर हाउएवर, देखो अब मैंने कल ही सिखाया था कि हम हाउएवर यूज करते हैं जब हम उल्टी साइड लिखते हैं, बट भी हम सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, बट अगर हमने स्टार्ट करना हो पैराग्राफ या लाइन तो हम हाउएवर करके लिख देते हैं। There are, however, some pitfalls that can easily overwhelm the potential benefits of dash. कहते हैं कि कुछ कमियां भी हैं अगर हम उसमें जो पोटेंशियल बेनिफिट्स बंदे के खराब कर देती हैं अगर हम टेलीविजन को वॉच करते हैं। The primary one stems from the fact that by observing the aforementioned trend, aforementioned का मतलब जो ऊपर ट्रेंड बताया गया है, वो ट्रेंड क्या है, वॉचिंग टेलीविजन, people have not only released its gravity but also gauged the magnitude of its repercussion when it comes to today's ever changing lifestyle. अब यहाँ पे बड़े लाइन वर्ड्स यूज कर दिए ना, अफोरमेंशन हमें समझ आ गया, when it realized to its gravity। अब ग्रेविटी का क्या मतलब है भाई, देखो वोकेबलरी में, हाँ जी, हमने कहा, हमने वर्ड्स दिए हैं इसके लिए, पिटफॉल्स भी बता दिया। गॉज्ड होता है, गॉज्ड होता है किसी चीज को मेजर करना, कैलकुलेट करना, ठीक है, किसी चीज को कैलकुलेट करना, उसका साइज, ठीक है, उसके इफेक्ट्स, मतलब उस चीजों की बात वो कर रहा है। तो अब हम दोबारा उस अगर लाइन को देखें तो हमें क्या समझ आती है कि उसमें बहुत सारे ऐसे पिटफॉल्स हैं जो हमें रियलाइज होते हैं, उसकी मतलब उसके क्या नेगेटिव्स हैं जब हम उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। तो when it comes to today's ever changing lifestyle, मतलब आज के टाइम पे जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसमें क्या क्या लोगों को देखने को मिलता है, तो वो यही कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं लोगों को कि जहां पे लोग इतना ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बेड पे बैठ के टीवी वॉच करी जा रहे हैं। ठीक है, hence it is apparent why many are against watching television, especially, अब मैं एडवर्ब डाल रही हूँ, है ना, वॉचिंग टेलीविजन, obviously it is, watching is verb, but when you are adding adverb, जब हम कह रहे हैं watching television at an early age, मतलब जब हम अर्ली एज में अगर हम टीवी वॉच करते हैं वो तो बहुत ही बुरा है। उस एज में तो वो कहता है कि हमें मतलब पढ़ना चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, तो उसकी इसमें बातें कर रहा है। In the view of the arguments outlined above, one can conclude that despite some drawbacks, मतलब फिर भी वो अब आपने एग्री करा था, जब आप एग्री कर रहे हो, नो डाउट हम दूसरे लोगों की बात कर सकते हैं कि यस कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं, वो हमने BP2 पैराग्राफ बना दिया, बट फिर हम बताएंगे कि फिर भी मैं ये कहूंगी कि इसमें चाहे जितने मर्जी ड्रॉबैक्स हैं, अपनी गालों पे ऊपर ही रखना। The benefits of this are indeed too great,
इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज आपने कह दिया था कि वॉचिंग टेलीविजन हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जो तुम्हारी चीज है वो ये नहीं है एट द एंड आके तुम कह दो कि देयर आर बेनिफिट्स ऑल्सो एंड देयर आर वन कैन इज रिप्लेस्ड वी कैन। नहीं, हम पता क्या होता है, हम नहीं कहते हैं कि एक एक इंसान ऐसा सोचता है, हम उस हिसाब से जेनरलाइज स्टेटमेंट लेके चलते हैं। द हेम प्रिया, सो दैट इज व्हाई वी राइट वन कैन जेनरलाइज्ड, क्योंकि जब हम कोई भी ऐसे लिखेंगे ना वो मेरे बारे में होगा ना आपके बारे में होगा, सो हाउ वी कैन राइट वी और आई। मैं नहीं लिखूंगी, उसने मुझे थोड़ी कहा कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दो। अगर उसने मुझे बोला होता अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दो तो मैं लिखती आई या वी इन अ फैमिली, बट इट इज नॉट बीइंग सेड ना वी द फ्रेंड्स। वो तो कह रहे हैं कि जनरलाइज मतलब जो दुनिया में चल रहा है उस हिसाब से देख के बताओ। सो दैट इज वाई वी राइट वी वी राइट वन कैन, पीपल कैन। अगर हमने प्लूरल में आना हो तो हम लिख देते हैं पीपल कैन। ओके, सो if I give you one as the homework, which topic you will write? हाँ जी, वन मीन्स हर एक ऐसा सोचता है। हाँ, हर एक इंसान ऐसा सोचता है। यस। अब अगर आपको मैं होमवर्क दूं तो क्या दूं, बताओ? एग्री डिसएग्री का ही दूंगी। ओके, राइट डाउन द टॉपिक। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज has lot of benefits. Should I write the topic or you are able to listen? Learning a new language learning a new language at an early age has lot of benefits. Do you agree or disagree? Is it clear? Learning a new language at an early age has lot of benefits. Do you agree or disagree? आपके लिए ये टॉपिक है, आपने इसमें डालना है अब कि आप कैसे लिखोगे। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज यही है कि लर्निंग मतलब मोस्टली जो हम लोग डेवलपिंग कंट्री से लोग हैं, व्हाट दे लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज यूज्ड अराउंड द ग्लोब, इट इज यूज्ड इन एवरी सेक्टर। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि हम कह रहे हैं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप एग्री करते हो या नहीं करते हो।
That is going to be your topic, your homework. So people, आप लोगों को, people means so my dear students, are you able to understand what I have taught you today? ऐसे राइटिंग कुछ समझ आई है हमें? आप ये पॉइंट्स लिखोगे, इसके बारे में सोचोगे, ठीक है? You do this homework. We will discuss this tomorrow. बिकॉज मैं आज नहीं डिस्कस करूंगी. अगर आज डिस्कस कर दूंगी तो फिर आप क्या सोच के लिखो? ठीक है. सो आज के लिए हम इसमें यही डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टू द कॉम्प्रीहेंशन. मैंने आज का आपको टॉपिक दिया था ना कि हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे. सो लेट्स डू दैट. Hello everyone. Now is me clear to you? My voice is audible? Okay. Great. Very nice. Very nice. Fine. So comprehension क्या होता है? हमारे एग्जाम में comprehension भी आना है.
उसमें क्या होता है, हमारे पास एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के बिहाइंड हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, एंड व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। यही काम होता है हमारा। है ना जी, यही काम होता है हमारा। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठे तो बहुत मुश्किल है, हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, आई हैव टोल्ड यू, लाइक मैंने अपडेट भी डाला था कि वी विल बी डूइंग कॉम्प्रिहेंशन बाय स्किम एंड स्कैन मेथड। स्किम का मतलब क्या होता है कि पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं। जैसे मुझे एक पैराग्राफ आया है, जैसे आपके सामने एक पैराग्राफ पड़ा है, इज योर स्कूल चाइल्ड, इज योर चाइल्ड एट स्कूल टुडे। आपने क्या करना है, पहले आपको अगर कोई भी पैराग्राफ आता है और उसके ऊपर टॉपिक दिया होता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रीड द टॉपिक। टॉपिक से हमें क्या होता है कि हमें समझ आ जाता है कि किसके बारे में पैराग्राफ है, हमारा दिमाग वहां रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रॉमिंग। कि हम तो पहले पीछे राइटिंग लिख रहे थे, तो मेरा दिमाग वहीं पे है ना अभी, टेलीविजन, लैंग्वेज। बट अगर मुझे इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो ऑब्वियसली मैं कुछ इसके रिगार्ड में पढ़ूंगी, तभी मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी। सो मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहना है, मैंने टॉपिक पढ़ा, इज योर चाइल्ड एट स्कूल टुडे। क्या आपका बच्चा आज स्कूल में है। स्कूल अटेंडेंस इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स करियर्स, मतलब किस स्कूल में जो अटेंडेंस लेते हैं वो बच्चों पेरेंट्स से पूछ रहा है ना। उसमें इंट्रोडक्शन की बात की है उसने। फिर व्हाट यू कैन डू टू हेल्प, वो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, ऑथराइज्ड एंड नॉन ऑथराइज्ड असेस की बात कर रहा है वो। ठीक है, फिर उसने क्या बात की है, प्रेजेंटेशन टू मतलब नेक्स्ट, उसकी मतलब उसने पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, फिर मैं थर्ड स्लाइड पे गई, मतलब मेरा थर्ड पेज, वहां पे तो पेज नीचे ही होगा बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है टू प्रेजेंट। तो उसमें मेरे पास क्वेश्चंस क्या है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन ऑन द टेक्स्ट, है ना। उसमें उसने बताया हुआ है कि मतलब अगर तो एग्री करते हैं तो ट्रू आएगा, अगर नहीं एग्री करता है मतलब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। ठीक है, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ट्रू कब होता है स्टेटमेंट, जो पैराग्राफ में दिया है वही सेम वो लिखा होगा तो आंसर विल बी ट्रू। बट अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो आंसर विल बी फॉल्स। बट इफ दैट इज नॉट बीइंग मेंशन्ड देन द आंसर विल बी नॉट गिवन। बट अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने पढ़ लिया कि क्या क्या मतलब टॉपिक में बताया हुआ है, स्कूल अटेंडेंस के बारे में बता रहे हैं। बच्चे से पूछा गया है कि क्या आपका बच्चा स्कूल में है या नहीं है, उसके बारे में। उसके बाद मैंने क्या करना है, मेरे को जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने उनको रीड करना है। चिल्ड्रन मस्ट गो टू द स्कूल वेयर दे आर रजिस्टर्ड। ठीक है, वो कहते हैं कि बच्चों को मतलब इसको समझना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं उसी स्कूल में जाएं जहां पे उनको उनकी एडमिशन हुई हुई है, जहां पे उनको रजिस्टर करवाया गया है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, मेरे दिमाग में है, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। ऑल अराइवल्स आफ्टर द रजिस्टर हैज क्लोज्ड आर रिकॉर्डेड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंस। ऑल अराइवल्स आफ्टर द रजिस्टर हैज क्लोज्ड, मतलब आपकी अटेंडेंस लग रही है और उसके बाद जो भी बच्चे आते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर देते हैं अनऑथराइज्ड एब्सेंस। ठीक है, दैट मीन्स कि वो अब इनको मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, अनऑथराइज्ड है, अथॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। पहले हमें समझ आना चाहिए
कि कितना मतलब हमें दिया गया हुआ है। इफ योर चाइल्ड इज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल यू मस्ट सेंड द स्कूल अ लेटर टू एक्सप्लेन। वो कहते हैं कि अगर आपका स्टूडेंट जो है या आपका जो बच्चा है, सॉरी पेरेंट्स को कह रहे हैं, वो अगर वो एब्सेंट है स्कूल से तो आप लोगों को क्या है, यू नीड टू सेंड द स्कूल अ लेटर टू एक्सप्लेन। जैसे आप लोग लीव लीव देते थे। क्यों वीडियो रुक गई है? इज इट फॉर एवरीवन दैट द वीडियो हैज स्टॉप्ड? प्लीज अगर ऐसा नहीं होता तो मत कहा करो, बिकॉज हम फोकस कर रहे होते किसी चीज पे, वो चीज जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, उस चीज को पहले प्रेयरली देख लिया करो। फटाफट से मैसेज के कारण क्या होता है कि मेरा डिस्ट्रैक्शन उधर हो जाता है। नो डाउट अगर कोई प्रॉब्लम है, यस यू नीड टू पोस्ट, बिकॉज दैट इज योर राइट। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा तो मैं तो बोली जा रही हूँ तो उसका कोई फायदा ही नहीं आएगा, उसका कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, है ना। बट थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद, उससे पहले नहीं। ओके, staff who think a child is having difficulties at the school will contact the parents. School will contact other authorities about the children who take frequent unauthorized absence. स्कूल को क्या करना है? स्कूल विल कॉन्टेक्ट अदर अथॉरिटीज, मतलब जो बच्चा बहुत जल्दी जल्दी छुट्टियां लेता है वो पहले क्या करेगा, मतलब पहले बच्चे मतलब पेरेंट्स क्या करेंगे, स्कूल अथॉरिटी क्या करेगी, और लोगों से पूछेगी मतलब अनऑथराइज्ड एब्सेंस क्यों हो रही है बच्चे की। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये चीजें हैं। सो व्हाट वी विल डू इज नाउ we will start with the paragraph. You all people are having the paragraph, so start reading the paragraph. अब मैंने पढ़ना शुरू करा। रिसीविंग अ गुड टाइम एजुकेशन विल गिव योर चाइल्ड द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट इन द लाइफ। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन, गुड गुड मीन्स अच्छी, फुल टाइम एजुकेशन मिल रही है तो आपका बच्चा क्या है, एक बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट ले रहा है लाइफ में। ठीक है, प्लीज पहले क्या करो, यू आर हैविंग एटलीस्ट 10 मिनट्स। आप इस पैराग्राफ को देख के अपने आंसर्स 1 to 5 जो है सिलेक्ट कर लो क्या है। उसके बाद पर्टिकुलर जाना, एक ही मैसेज में मुझे लिखेगा 1 का आंसर ये है, 2 का ये, 3 का, देन आई विल लेट यू नो द आंसर्स एंड विल एक्सप्लेन यू कैसे और क्यों। ठीक है, ऐसे नहीं फटाफट से ट्रू फॉल्स लिखी जाना, प्लीज डोंट डू दैट। Attending school regularly and punctuality is essential if the children are to the make best of the opportunities. अब इसका क्या मतलब है? मतलब उसका क्या मतलब है कि अगर बच्चा रेगुलरली और पंचुअलिटी से मतलब प्रॉपर टाइम पे स्कूल में आता है तो वो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है स्कूल में अवेलेबल है उनका क्या है, बच्चे को फायदा हो सकता है। द लॉ सेज दैट पेरेंट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर चाइल्ड रेगुलरली अटेंड्स द स्कूल वेयर ही और शी इज रजिस्टर्ड। अब ये चीज मेरे पास कहाँ पे थी? हाँ जी, रेगुलर का मतलब होता है रोज और पंचुअल का मतलब होता है पूरे टाइम पे। ठीक है, क्या वो जरूरी, अगर वो बच्चा पूरे टाइम पे जाता है और रोज जाता है तो उससे वो बहुत सारी फैसिलिटीज या बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारी जो मतलब चीजें स्कूल में अवेलेबल है उनका फायदा उठा सकता है। अगला जो थर्ड है, द लॉ सेज दैट पेरेंट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर चाइल्ड रेगुलरली अटेंड्स द स्कूल वेयर ही और शी इज रजिस्टर्ड। वो कहते हैं कि वो क्या करे कि जहां पे बच्चा रजिस्टर्ड है वहां पे रोज जाए। और मेरे पास क्या था स्टेटमेंट में, यही था कुछ।
मुझसे क्या पूछा गया था? मेरे से क्या पूछा गया था अभी? मेरे से क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, चिल्ड्रन मस्ट गो टू द स्कूल वेयर दे आर रजिस्टर्ड। यस। अब बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं यस, बट बच्चे यहाँ पे वो पूछ रहा है इन द फॉर्मेट ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। सो माय आंसर वुड बी ट्रू, नॉट यस। वो भी चीज गलत होती है। ठीक है, हमेशा हमें ये देखना है कि मेरे आंसर का फॉर्मेट क्या है। जो मेरे आंसर का फॉर्मेट है मैं वही उसी फॉर्म में प्रेजेंट करूं। ठीक है, मेरा फर्स्ट हो गया सॉल्व। लेट्स मूव टू अगेन। what can what you can do to help make sure your child arrives at the school on time. This encourage habits of good timekeeping and lessons any possible classroom disruption. इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि आप कैसे बच्चे को हेल्प कर सकते हो, मतलब पेरेंट्स बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। वो बच्चे को सिखाएं, मतलब वो इतना तक करे कि बच्चा स्कूल ऑन टाइम पहुंच जाए। इससे उसको क्या टाइम कीपिंग आती है। टाइम कीपिंग वहां पे क्या वर्ड यूज किया था? पंचुअलिटी। ठीक है, ठीक है। पंचुअल मीन्स आई एम पंचुअल, इसका मतलब भी मैं ऑन टाइम होता हूं। एंड लेसन्स एनी पॉसिबल क्लासरूम डिसरप्शन, मतलब अगर कोई बच्चा लेट आता है, टीचर पढ़ाना शुरू कर देती है, वो कहता है मे आई कम इन मैम, तो उससे क्या होता है? डिसरप्शन, मतलब क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। डिस्टर्बेंस के लिए वर्ड यूज किया हुआ है डिसरप्शन। सो जितनी हम रीडिंग करते हैं उतनी हमारे पास वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है। If your child arrives after the register has closed with a good reason, without a good reason, मतलब वही है ना, ये भी क्वेश्चन है। बट उससे पहले मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? all arrivals after the register has closed are recorded as unauthorized absence. अब उसने क्या बोला है? ऑल, सब स्टूडेंट्स जो भी रजिस्टर बंद होने के बाद आएंगे उनको क्या कंसिडर करा जाएगा? अनऑथराइज्ड, है ना। बट यहाँ पे क्या बोला है? इफ योर चाइल्ड अराइव्स आफ्टर द स्कूल हैज क्लोज्ड, आफ्टर द रजिस्टर हैज क्लोज्ड विदाउट अ गुड रीजन, दिस विल बी रिकॉर्डेड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंस। वो बच्चे सिर्फ जिन बच्चों का के पास सॉलिड रीजन नहीं है उनको करा जाएगा, सब बच्चों को नहीं। सो इट मीन्स सेकेंड इज फॉल्स। आ रही है समझ? सेकेंड फॉल्स समझ आया? क्यों? क्योंकि बच्चे ट्रू लिख के भेज रहे थे मेरे को। yes, now you people are able to understand why. So it is very important to read the question and then comprehension को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। मतलब हम पहले क्वेश्चन पढ़ ले तो फिर हम फटाफट पढ़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो क्या है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। when I'm explaining you it will take time, but when you people are reading it will not take so much time. ठीक है, okay. If your child has to miss the school, it is vital that you let the school know why, preferably on the first morning of the absence. मतलब अगर आपके बच्चे ने स्कूल से छुट्टी लेनी है तो आप स्कूल में बता दो उसी दिन जिस दिन बच्चे ने छुट्टी की है। Your child school will have an attendance policy explaining how this should be done. वो कहते हैं कि आपके स्कूल में एक मतलब होगी, एक वे होगा कि किस तरह हम बता सकते हैं ये चीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अब बच्चे कह रहे हैं मुझे इसका आंसर ट्रू है। लेट मी सी। इफ योर चाइल्ड इज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल यू मस्ट सेंड द स्कूल अ लेटर टू एक्सप्लेन वाई। वो कह रहा है कि लेटर भेज दो, बट ये क्या कह रहा है टेक्स्ट में? ये क्या कह रहा है टेक्स्ट में बताओ? ये टेक्स्ट में कह रहा है कि आप लोग मतलब अपडेट कर दो जो स्कूल की पॉलिसी है। तो वो लेटर की बात तो कर ही नहीं रहा, तो लेटर तो दिया ही नहीं है। ठीक है, क्या पता उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हो।
ईमेल करनी हो, तो लेटर की बात ही नहीं हुई। सो अगर लेटर की बात नहीं हुई तो द आंसर विल बी नॉट गिवन। गेटिंग माई पॉइंट वाई द आंसर इज नॉट गिवन? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर। If you know or think that your child is having difficulties attending school, you should contact the school. It is better to do this sooner rather than later, as most problems can be dealt with very quickly. कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आप, मतलब वो पेरेंट्स को ही समझा रहे हैं कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि उसके बच्चे को डिफिकल्टी है स्कूल अटेंड करने में, तो वो क्या करें, इस चीज को डिले ना करें पर बहुत जल्दी से स्कूल में अपडेट करें या उनके साथ इस चीज के बारे में डिस्कस करें। डेल्ट मतलब इस चीज को हैंडल करें, ठीक है। स्टाफ हु थिंक्स दैट अ चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्टीज एट द स्कूल विल कांटेक्ट द पेरेंट्स। अभी हमने ये नहीं पढ़ा। स्कूल विल कांटेक्ट अदर अथॉरिटीज। अच्छा, ये पूछा ही नहीं है ना। लेट्स मूव अहेड। पर हमें देखो रिफ्लेक्ट कर रहा था हमारे दिमाग में, तभी हम पीछे जाके देख रहे हैं। ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड से, if your child is absent and the school either does not receive an explanation from our child, school will not authorize the sense for the following reasons. I think some content is missing. Just give me a minute. Yes, students, some of the content was missing. So I'm just putting that content over here on the whiteboard. Let me see if it is possible. Sorry dear, some of the content was missing.
in the PPT. So that is why we were not able to have the answers of these questions. But yes, what we can do is we can shift to the, are you able to understand that little of the content was missing in the PPT? So that's why we were not able to get the answers of these questions, but we can move to the next paragraph and we can solve that paragraph. Is it fine to all of you? Yes, please. Is it fine? Okay. Start doing this paragraph and find out the answers of the questions. Okay, now you need to give me the answers of these questions. Please start doing that. First, what you need to do is you need to read the content, means a topic of the paragraph. Read that this is GZJ Travel Recruitment Info. ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके जो है अब मेरे से क्वेश्चन पूछे हुए हैं. So what you need to do is you need to find out the answers of these questions. Please do that. I'm giving you some time. Let be 5 minutes and then we will discuss the answers. This is the work for you. Please do it. Are you people ready to do it? Yes, जो पिछले वाले क्वेश्चंस थे, जो हमने पिछला पैराग्राफ किया था, उसमें तो हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऐसे ही लिखने हैं. बट जहां पे अगर उसने पूछा कुछ और है, लाइक यहाँ पे जैसे मेरे पास कंटेंट में जो मुझसे पूछा गया है, दैट इज राइट मोर नो मोर देन 3 वर्ड्स. तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा आंसर है वो वर्ड्स में आएगा और वो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें 3 वर्ड से ज्यादा नहीं आने चाहिए, कम हो सकते हैं 3 वर्ड से. ठीक है, बिकॉज उसने बोला नो मोर देन 3 वर्ड्स, 3 वर्ड से ज्यादा नहीं. ठीक है, सो प्लीज डू दिस. बच्चे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाके क्वेश्चन देखने हैं ना. पिक क्लिक कर लो, पिक क्लिक कर लो इसकी एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग. You all people are having the phone. Click the pic. Once you click it, just say me yes. Done? Should I make you go with the paragraph now? Okay. So done. Last you can say half minute for all of you to do it. After that, I will be shifting to the paragraph. Okay, every person has said no problem. You will be solving only 3 questions, 15, 16 and 17. Fine. This is the paragraph now, students. I'm also going to read it. We are looking for keen and effective people who are passionate about travel to the work as travel sales consultant in our rapidly growing team.
वो कह रहे हैं वी आर लुकिंग फॉर कीन एंड इफेक्टिव पीपल हु आर पैशनेट अबाउट ट्रैवल टू वर्क एज ट्रैवल सेल्स कंसल्टेंट्स। वो इन लोगों के बारे में मतलब ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जिनको ट्रैवलिंग का शौक है और वो इसको अपना पैशन बना सकते हैं इन अवर रैपिडली ग्रोइंग टीम। ट्रैवल इंडस्ट्री भी तो ग्रो कर रही है ना, उसके बिहाफ पे। अवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज 5 स्टेजेस। हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मतलब हम जैसे बंदे को रिक्रूट करते हैं उसमें 5 स्टेजेस है। जैसे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, मतलब जैसे आप लोगों का पहले रिटन टेस्ट होगा फिर ऐसा होगा, इसी तरह इनको अगर रिक्रूट करना है तो वो बंदे को 5 स्टेजेस में रिक्रूट करते हैं। Here how it works. The first stage is to use our online application form to apply for a current vacancy. पहले उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा उनकी करंट वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। दिस इज योर चांस टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ये आपके पास चांस है कि आप अपने बारे में हमें बताओ। एंड द क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस you have to make you the ideal for the job। मतलब उसमें उन्होंने पूछा होगा आपके बारे में, आपकी क्वालिटीज, आपके एक्सपीरियंसेस, जिससे आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए एक परफेक्ट पर्सन हो। फॉर द ट्रेवल sales consultant role, you will need to provide us with the evidence that you have extensive experience in the marketing environment। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपने बताना है अगर आपने कंसल्टेंट बनना है तो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे ऐसे एविडेंस जो बताएंगे कि आपके पास मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एज वेल एज सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड, और आपके पास मतलब एकेडमिकली भी आप पढ़े लिखे इंसान हो। फिर मतलब उसमें आपकी क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी, आपका एक्सपीरियंस जो ये बताएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आपका एकेडमिक भी बिल्कुल परफेक्ट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ करियर एज अ कॉर्पोरेट ट्रेवल कंसल्टेंट, अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू विल नीड एट लीस्ट 1 year एक्सपीरियंस एज अ ट्रेवल कंसल्टेंट। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके करियर में, मतलब एज अ कॉर्पोरेट ट्रेवल कंसल्टेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल नीड एट लीस्ट 1 year एक्सपीरियंस। इफ यू रीच द स्टेज 2, ये फर्स्ट स्टेज है, वी विल अरेंज अ टेलीफोन डिस्कशन। मतलब अगर आपका मतलब उनको सीवी आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भेजा वो उनको सही लग गया तो क्या करेंगे कि वो कहते हैं हम टेलीफोनिकली कॉल करेंगे आपको, वे यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट अस इंक्लूडिंग द रिवॉर्ड ऑन ऑफर। मतलब हम उसमें रिवॉर्ड वगैरह हर चीज डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टांस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल। आप भी जब अपनी राइटिंग लिखते हो तो आपने भी कभी एग्जाम्पल कोट करनी हो तो यू पीपल कैन राइट फॉर इंस्टेंस। वंस a year we like to acknowledge outstanding efforts and celebrate successes with our co-workers, and we have prize giving ceremonies designed to do just this। अगर हमें एक साल में पता लग जाए ना ये बंदे ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे एफर्ट्स करे हैं, है ना, तो हम उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए प्राइज वगैरह भी देते हैं। इन द स्टेज 3 देयर विल बी देयर वी विल बी एबल टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब स्टेज 3 में आप उसके बारे में बताएंगे। JCL ट्रेवल जो भी है ना, GZJ ट्रेवल के बारे में, एंड फाइंड आउट मोर अबाउट यू, मतलब फिर अपने बारे में भी वो बताएंगे और आपके बारे में भी पूछेंगे। एट एन इंटरव्यू विच यू विल अटेंड विद स्मॉल ग्रुप ऑफ अदर एप्लीकेंट्स, मतलब और भी ग्रुप में एप्लीकेंट्स होंगे उनके साथ। वी विल बी आस्किंग यू अबाउट योर एम्बिशंस, हम आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज योर एम इन लाइफ, एंड ऑफ कोर्स योर सेल्स एबिलिटी, मतलब आप किस तरह प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है, अब हम जाते हैं कहीं पे, इवन हम सैलून में जाते हैं तो क्या होता है उसमें, है ना, वो हम करवा अपना फेस का कुछ रहे होते हैं, ये वो अपने हमारे हाथों को हेयर्स को हाथ लगा के ये बहुत ड्राई है स्पा करवा लो। तो व्हाट इज दिस इज सेल्स एबिलिटी, है ना।
the most vital quality for our business. You will also be required to complete psychometric test so that we can find out more about your work style. तो हमने ये तो हमें समझ आ गया, मतलब रीडिंग भी बच्चे ये चीज जरूर रहेगी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ आए. ठीक है. सो थोड़ा बहुत रीडिंग को हैबिट बनाओ, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो. दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एवरीवेयर. रादर आपने वो मतलब यू कैन से करंट अफेयर्स लगा लो, रादर दिस एस्पेक्ट इज देयर, रादर इट इज एन एसे. बिकॉज एसे में भी आपको अगर पॉलिटिकल लेवल पे कोई ऐसे आएगा तो ऑब्वियसली आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा होगा तो दैट विल हेल्प यू टू मच. ठीक है. अब अब वो कह रहा है कैसे है, गो ऑनलाइन एंड अप्लाई फॉर द जॉब एडवर्टाइजमेंट, गिव द प्रूफ ऑफ द अचीवमेंट सो फार बोथ इन एजुकेशन एंड इन, क्या है अभी बताओ, मार्केटिंग एनवायरनमेंट बच्चों ने लिखा है. अच्छा जी. और बिल्कुल ठीक है. ये भी बात सही है बच्चे कि आप लोग कह रहे हो कि क्लासेस ही इतनी होती हैं, हम पढ़े क्या. बट बच्चों अगर हमें कुछ करना है ना, ऑब्वियसली हमें उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ता है. यस, 15th का आंसर मार्केटिंग एनवायरनमेंट ही है. When it comes to 16th, it is corporate travel consultant. Very good. And rewards. Very nice. So, yeah, I do understand syllabus is too much. Moreover, you can say that क्या कहते हैं कि क्लासेस हैं सब कुछ, बट स्टिल वी पीपल हैव टू मैनेज अलॉट. इस टाइम पे आप लोग मैनेज कर लोगे अपनी लाइफ को, मतलब अपने डे को प्रॉपरली अपने आप को यूटिलाइज कर लोगे अपना टाइम, तो दैट इज गोना हेल्प यू अलॉट. क्योंकि फिर आपकी लाइफ जो है वो बन जाएगी. हाँ जी, हाँ जी, आंसर्स आर राइट. आई एम डिक्टेटिंग द आंसर्स, प्लीज नोट डाउन. 15th is marketing environment, 16th is corporate travel consultant, 17th is rewards. बस यही थे ना हमारे पास, 15, 16 एंड 17th. सो दीज वर द फोर एंड वी गेट द आंसर्स ऑफ दिस. इज इट क्लियर? यस, 18th मेरे बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, दे हैव रिटन आउटस्टैंडिंग. यस, बिल्कुल करेक्ट है, आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स. इज इट क्लियर? यू आर फाइंडिंग इट गुड? समझ आ रहा है जो करवाया जा रहा है? इज इट बोरिंग और इंटरेस्टिंग? Okay, you people are able to understand and you are finding it as fine, interesting, very good. Should I give you another passage to do? एक और पैसेज करें हम? ओके, लेट्स मूव टू अनदर पैसेज. उसके बाद भी इसमें एक दो पैसेजेस हैं. डू इट एज अ होमवर्क. टुमारो आई विल गिव यू द आंसर्स इन द क्लास. ओके, 8:30 है क्लास. एक ऐसे कर लेते हैं. वी विल बी कंप्लीटिंग इट बाय 7:45 and after that आपके पास you will be having 45 minutes to have your dinner or relaxation and then you can attend your political class. Is it fine? Can it go? कर लें? बताओ मुझे. चलो, people are saying yes. You people are really, you can say studious. You really want to study. I really appreciate you people. Okay. So we are having another, you can say, paragraph with us and it is Hilton Laboratory. हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस. वो बता रहा है हिल्टन लेबोरेटरी की. क्लिक मीटिंग्स का ही तो सेंड किया था मैंने लिंक.
ओके अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस है, पर्सनल सेफ्टी कैसे मेंटेन करनी है, हाउ टू डिस्पोज ऑफ द रबिश सेफली, मतलब जो रबिश है, मतलब जो कूड़ा होता है, जो डंप होता है, वेस्ट होता है, उसको कैसे प्रॉपरली डिस्पोज करना है, मतलब डंप करना है, उसके उसकी भी सेफ्टी रखनी पड़ती है। ठीक है, चलो फटाफट क्लिक कर लो ब्लैंक्स। प्लीज डोंट टॉक विद ईच अदर, क्लिक करो फटाफट, ब्लैंक्स क्लिक कर लो और फटाफट से पढ़े। Last half minute for all of you, then you need to find out the answers of these. Okay, read the paragraph now and find out the answers. You must be familiar with the emergency procedures in your building. मतलब आपको फेमिलियर होना चाहिए कि जिस बिल्डिंग में आप हो उसमें इमरजेंसी आने पे क्या प्रोसीजर्स है, सो दैट यू नो व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ फायर स्पिलेजेस। अगर आग लग जाए या कुछ फैल जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या इमरजेंसी सर्विसेज आप ले सकते हो। डो नॉट एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरियाज विदाउट ऑथराइजेशन। कई जगह पे लिखा होता है ना, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे जाने के लिए मना किया हुआ है। तो कहते हैं कि विदाउट ऑथराइजेशन, मतलब जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी मतलब परमिशन नहीं है, तब तक मत जाओ। एंड एट ऑल द टाइम्स ऑब्जर्व द वार्निंग गिवन। और हर टाइम पे जैसे मतलब हर बिल्डिंग में कहा होता है ना, गो लेफ्ट गो राइट, डोंट गो दिस साइड, है ना, डोंट यू कैन से यू थ्रो द वेस्ट ओवर हेयर। सो ये सारी चीजों को फॉलो करा करो। ठीक है, डू नॉट वेज ओपन फायर डोर्स और टेम्पर विद द डोर क्लोजर्स एंड डू नॉट ब्लॉक डोरवेज। मतलब ये नहीं है कि आप रास्ते में खड़े हो गए और किसी को आने जाने नहीं दे रहे हो डोर में या कॉरिडोर्स में या स्टेयर्स में आपने झुरमट लगा के रख लिया एंड यू आर नॉट अलाउइंग अदर पीपल टू गो, एज ऑब्स्ट्रक्शंस मे इफेक्ट असेस इन द इवेंट ऑफ फायर। ठीक है, मतलब ये जो है ऑब्स्ट्रक्शंस जो है, मतलब जो आपने रुकावटें लगाई हुई है, इसमें क्या होता है कई बार कहीं पे कोई आग वगैरह लगी होती है, वहां पे बंदा पहुंचने में लेट हो जाता है। अवॉइड लीविंग ड्रोअर्स एंड डोर्स ओपन, मतलब एवे नहीं डोर्स या ड्रॉर्स खोल के चले जाओ अननेसेसरली, एंड डू नॉट ट्रेल केबल्स और फ्लेक्सेस अक्रॉस द फ्लोर, है ना, मतलब अगर कोई वायरिंग वगैरह हुई हुई है तो उसको मत छेड़ो। वी एम टू पर्सनल सेफ्टी, मतलब अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो, आप किसी भी बिल्डिंग को यूज कर रहे हो तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड जहां पे आप काम करते हो, वर्क प्लेसेस जहां पे आप लोग काम करते हो। वी एम टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय सेविंग एंड रिसाइकलिंग ग्लास। अब कांच टूट गया ऐसे ही फ्लोर पे ही फेंक के आप आगे चले जाओ तो गलत है ना, जिसके लग गया उसको प्रॉब्लम आएगी ना। वेस्ट पेपर ऐसे मत थ्रो करो एंड एन इंक्रीजिंग रेंज ऑफ अदर मटेरियल्स, मतलब और भी कुछ बड़ी चीजें होती हैं जैसे अननेसेसरी आपके बैग में कुछ है, आपके पॉली बैग में कुछ है और आप ऐसे रास्ते में जाते जाते फेंक रहे हो तो इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक मटेरियल्स केयरफुली फॉर नॉन कंटेमिनेशन बिफोर प्लेसिंग देम इन द रिसाइकलिंग कंटेनर्स, है ना। जैसे आपको पता है आपने ये रिसाइकलिंग कंटेनर में डालने हैं बट वहां पे मेंशन होता है रेड ब्लू ग्रीन एंड उनके ऊपर ये भी बताया होता है कि रेड रेड में क्या डालना है, ब्लू में क्या डालना है और ग्रीन में क्या डालना है। सो डू इट अकॉर्डिंगली। नेवर पुट शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज रेजर ब्लेड्स और ब्रोकन ग्लासेस इनटू द वेस्ट बिन्स विदाउट बीइंग रैप द आइटम्स केयरफुली, है ना। जैसे कोई तीखी चीज है तो उसको बिना रैप के आप ऐसे ही फेंक देते, तो जो बेचारा उसमें से निकाल रहा है उसके हाथ पे लग गया वो तो गया,
and the items carefully to protect those emptying the bins. Other waste procedures may vary. Contact your building manager or divisional safety officer for the advice with regard to your particular department. ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये वाला एक टॉपिक है, ये समझ तो आ गया होगा आपको। अब 22, there are certain places in the building that staff should avoid unless they have क्या, बताओ। unless they have, हमने करा था डोंट गो अनलेस यू आर नॉट हैविंग द ऑथराइजेशन, तो आंसर क्या आएगा, ऑथराइजेशन। वेरी गुड। टू इंश्योर पीपल कैन गेट यू इजीली इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर आर नो डैश टू एग्जिट्स। देयर आर नो, अगर आपको लगता है कि लोग आपके पास मतलब या है ना पीपल आपके पास इजीली पहुंच जाएं, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल नॉट ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं पैदा करोगे वहां पे। आंसर आएगा ऑब्स्ट्रक्शंस टू एग्जिट। देयर आर नो ऑब्स्ट्रक्शंस टू एग्जिट। आपने पढ़ा था ना ये, सो आप लोग गलत लिख रहे हो, ब्लॉक द डोर्स नहीं, फिर स्टेयर्स भी थी, बहुत सारी चीजें थी। सो वहां पे उसने उसको पैराफ्रेज करके एक वर्ड दिया था हमें, दैट वर्ड वाज ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब जाने के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो 23rd के लिए। आइटम्स which could cause injury must be dash before they are disposed of। क्या करना है उनको, रैप करना है किसी पेपर में या किसी चीज में, रैप करके पॉलिथीन में फिर फेंकना है। यस, बस यही थे क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस तो नहीं करे ना हमने। सो फाइन, यू अंडरस्टूड हाउ टू डू द कॉम्प्रीहेंशंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। ठीक है, टॉपिक पढ़ो, फिर क्वेश्चंस पढ़ो, फिर पैराग्राफ में स्कैनिंग करो। जैसे ही वो मतलब हमने जो पढ़ा होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, हमें समझ आ जाता है कि यस वी रेड दैट, तो फिर हमें क्या होता है, इजीली फाइंड आउट हो जाता है, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो कॉम्प्रीहेंशन को इस तरह हम सॉल्व करते हैं। व्हेन इट कम्स टू यू कैन से योर एसेज, यू कम टू नो अबाउट द एग्री डिसएग्री वन, तो आपने वो कैसे करना है वो आपको समझ आ गया। ठीक है, आया है ना समझ। एग्री करना है तो वन साइडेड वाला टेम्पलेट करना है, अगर हमने करना है ऑन द अदर हैंड वो डिसएग्री वाला। सो दीज आर द टू थिंग्स वी डिड एंड आई हैव गिवन यू द होमवर्क आल्सो, one essay. So please do that, and if you face any problem, please let me know via your messages so that we can discuss that in the coming classes. And I want that you people please don't hesitate in asking any of your queries. एक्चुअली मजा तभी आता है पढ़ने का जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाती है। तो आई डोंट वांट दैट फॉर यू पीपल। Please write the whole essay, that would be much more you can say good thing, because अगर आप ऐसे लिखोगे, okay जी, I would try to send the vocabulary words to। अच्छा जी, disagree वाला रिपीट करना है, ओके बुक बतानी है, वर्ड लिमिट्स एटलीस्ट 250 वर्ड्स तो जरूर लिखो, वैसे तो 300 वर्ड्स तक ही लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। प्लीज गो टू 300 वर्ड्स एटलीस्ट। ठीक है, okay students, thank you so much, good evening, have a nice weekend। You people are having Sunday, so relax a lot so that on Monday you should be feeling energetic to attend all the classes, because I know that you people are having very hectic schedule। Okay, bye. Bye students. God bless you all. Bye.